हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड चैंपियंस. इफ यू आर गिविंग योर CA एग्जाम्स इन November 23 attempt, then you are at the right place. If you have to give both the groups, then I've already uploaded a study planner on this channel. You can check that out. But if you are giving only one group, or you have given your exams in May 23 but you are not sure about clearing your exams, or you have to give only balance papers, like few papers are remaining, or else you are giving exams with a full-time job, then this video is for you. And some of you would have given exams in May 23 or would have given exams earlier also but couldn't make it. There is nothing wrong in it. You haven't given up. So you are real fighters, you are real champions. लेकिन हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना है, and we couldn't clear in the past exams because we were making some mistakes here and there. Now what are those crucial mistakes which you have to avoid in this attempt so that you become chartered accountants in November 23 is also what I have shared in this video. So do check out this video till the end. Now let's begin with this video. Now first thing is, there can be two cases. Either you have given your exams in May 23 or you have not given your exams in May 23. अगर आपने May 23 में एग्जाम नहीं दिए हैं, then you are not awaiting for results. आपको सीधा इंडिपेंडेंटली एक ही ग्रुप देना है November 23 में. Then it is fine. जो मैं प्लानर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो हिसाब से you can plan your study leaves. But if you have given your exams in May 23, then there can be two cases. Either you are sure that you will clear one group and only second group is left. Or else second case would be you are not sure about clearing your exams and there is a chance that you might not clear both the groups and you will have to appear for both the groups again. तो अगर आपको दोनों ग्रुप वापस देने पड़ते हैं then you will have to follow the planner that I have shared for both the groups. लेकिन अगर आपको एक ही ग्रुप देना है तो ये प्लानर जो है वो आप यूज कर सकते हो. एंड थर्ड एंड द बेस्ट केस कुड बी, आपने May 23 में एग्जाम दिए हैं और आप क्लियर कर जाते हो, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन देयर कैन बी नथिंग गुड लाइक दैट. लेकिन अगर थिंग्स डोंट टर्न आउट अवर वे तो हमें ये स्टडी लीव्स प्लान करने पड़ेंगे और November 23 में एग्जाम्स देने पड़ेंगे. सो हाउ यू शुड प्लान इफ यू हैव टू गिव योर वन ग्रुप. So first thing is, अगर आपने May 23 में एग्जाम्स दिए हुए हैं then you are awaiting results. हम रिजल्ट्स की राह देख रहे हैं एंड टेंटेटिवली रिजल्ट्स आपका जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, अगर आप रिजल्ट्स की राह देख रहे हो या फिर आप राह नहीं देख रहे हो और सीधा आपको एक ही ग्रुप देना है, you have to complete at least 1 or 2 practical subjects by 10th July. अगर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप 10th जुलाई तक कंप्लीट कर लेते हो then there is nothing like that. But if your trainings are going on, you are completing your articleship, or you have some XYZ reasons where you cannot complete 2 subjects, but you have to try that you complete at least 1 practical subject before 10th July. 10 जुलाई तक आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, फिर चाहे वो ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो. नाउ से 10th जुलाई को रिजल्ट्स आ जाता है, उसके बाद आपको आपके स्टडी लीव्स प्रॉपरली प्लान करने हैं. कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, you have to complete your first read in 40 days. By 20th August, you should complete your first read. I have given 40 days since you have 4 subjects left. So you have 10 days per subject. ये अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि दिन में आप 3-4 घंटे निकाल पाओगे एंड वीकेंड्स में यू कैन स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. एंड if you are have no job, no articleship and you are just focusing on studies, then 10 days is more than enough to complete a subject. अच्छे से सब्जेक्ट कंप्लीट करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करना, 10 डेज में आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. व्हाट इज द सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो? आइडियली यू शुड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ ICAI. मैंने जो बोथ ग्रुप का प्लानर शेयर किया है उसमें मैंने सब्जेक्ट सीक्वेंस शेयर किया है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो सीक्वेंस, या फिर यू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ ICAI जो पेपर पूछ रहा है ना जो सीक्वेंस में, वो ही सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है. So by 20th August, you should complete your first read. Now what you have to do? You have to start your first revision. That is second read. First revision आप start करोगे by 20th July and it should be completed in 20 days. That is by 15th September. I have given 3 to 4 buffer days in this. I have given 23-24 days to complete your first revision. That is second read. And most important thing, this read has to be with a full syllabus test series. Full syllabus test series याद रखना, full syllabus test series. आपको chapter wise टेस्ट नहीं लिखने हैं, आपको full syllabus test ही देने हैं. I have shared a video on this channel why 80 to 85% people don't clear CA exams. The reason is this, because they don't give full syllabus test series. आपको
फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लिखना है आपके फर्स्ट रिवीजन में, दैट इज सेकंड रीड में, और ये कब तक कंप्लीट होना जाना चाहिए? बाय 15 सितंबर। नाउ यू हैव डन योर 2 रीड्स, एक रीड हो गया, एक रिवीजन हो गया, अभी आपको सेकंड रिवीजन करना है, दैट इज थर्ड रीड करना है, दैट शुड एंड इन 16 डेज, एंड योर फोर्थ रीड दैट इज थर्ड रिवीजन शुड ऑल्सो एंड इन 16 डेज। तो टोटली आपके कितने रीड होने चाहिए? 4 रीड। First read in 40 days, second read in 20 days, third read in 16 days and fourth read again in 16 days. Third read में भी आपको एक full syllabus test series देना है, आपको एक ही ग्रुप अपीयर कर रहे हो, then hence there is a chance कि आपने पीछे multiple attempts दिए और आपने क्लियर नहीं किया है, या फिर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो आपके पास एम्पल टाइम है। आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको 8 पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। आपको कितने पेपर के लिए पढ़ाई करनी है? सिर्फ 4 पेपर के लिए, इसीलिए आपको एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज लिखने ही है। तो आपके जो थर्ड रीड है और फोर्थ रीड है वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए? योर थर्ड रीड दैट इज सेकंड रिवीजन शुड बी कंप्लीटेड बाय 5th October and by 25th October you have to complete your fourth read. तो this should be your planner. इसके अंदर you can customize your planner subject wise, like how will you study, which subject कभी करोगे, and even in that you have to prepare a daily planner. यानी एक सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर कर लिया तो वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ने वाले हो, I'll share how you have to prepare your daily planner. तो ओवरऑल आफ्टर 10th July this should be your study plan. 4 रीड्स कंप्लीट करने हैं और 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी है. Now I told you few mistakes that you might be making in the previous attempts because of which you couldn't make it. What is the first mistake that you might be making? कंप्लीट एंड कवर 100% सिलेबस. शायद आपने तभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा. यू वुड हैव डन सिलेक्टिव स्टडीज, लेकिन अभी यू हैव एम्पल टाइम, यू हैव टू गिव ओनली 1 ग्रुप. इसीलिए प्लीज 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 डोंट डू सिलेक्टिव स्टडीज. कंप्लीट 100% syllabus. May 23 was an attempt where ICI had asked tricky questions. Papers were lengthy, papers were a little out of the box. So ICI is testing your concepts. अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं किया है और वो पेपर में आ गया तो हम क्या करेंगे? हमें तो 6 महीने के बाद वापस पेपर लिखने आना पड़ेगा. इसीलिए now you have time. If you want to make this your last attempt, then complete 100% syllabus. Cover all the concepts that you can cover in this attempt. ठीक है. Second, डू मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, हम लिखते नहीं है, इसीलिए आई हैव टोल्ड गिव 2 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज. आप अगर पूरा 3 घंटे का पेपर लिखते हो, देन यू गेट दैट फीलिंग of how the paper will appear in the exams. You will be able to fight with that fear, that anxiety. You will be able to मैनेज एंड जज योर राइटिंग स्पीड की 3 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट होता है या नहीं होता है. ये सारी चीजें घर पे एक्सपीरियंस करने के लिए फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी होती है. वरना अगर आप एग्जाम हॉल में जाके तुरंत पेपर देख के लिखते हो, देन यू आर बाउंड टू गेट फियरफुल, यू आर बाउंड टू बी एंशियस, जिसकी वजह से आप सिली मिस्टेक्स करोगे और आप पेपर में क्लियर नहीं कर पाओगे. इसीलिए वो जो एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर है वो घर पे क्रिएट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी. तो फर्स्ट मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो क्या है? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, 100% कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं. दूसरा, जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट यू, आप क्या कर सकते हो? आज आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है? आज आपने जो भी पढ़ा है ना, उसमें से रैंडमली 1 या 2 सम सिलेक्ट करो, 1 या 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करो और रात को वो 1-2 क्वेश्चन लिख लो. इट हार्डली टेक्स 20-25 मिनट्स, बट इफ यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे, आप रोज के सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखते हो या 2 आंसर्स लिखते हो, देन 30 डेज के अंदर आप 60 क्वेश्चंस लिख सकते हो. 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर, यू वुड हैव रिटन 180 क्वेश्चंस. इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद आईसीआई खुद भी आपको ये अटेम्प्ट में क्लियर करने से रोक नहीं सकता है. सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू क्लियर इन दिस एग्जाम्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस. थर्ड थिंग, मेकिंग डेली प्लानर इज द मस्ट. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, जो ये यूट्यूब पे आपको प्लानर मिलता है ना, आई हैव शेयर, ऐसे बहुत सारे फैकल्टी शेयर करेंगे. इट्स फाइन, यू कैन रेफर दैट. उसके हिसाब से आपका एक प्लानर बनाओ. आपने प्लानर बना दिया कि 10 days I'll do FR, 10 days I'll do SFM, 10 days I'll do audit. फिर क्या 10 दिन तक FR करते ही जा रहे, पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे. यू हैव टू मेक अ डेली प्लानर. यू हैव टू मेक अ डेली प्लानर. सिंस आई एम टीचिंग SCMP, आई विल टेल यू SCMP कैसे प्लान करेंगे. इफ यू हैव टू डू SCMP in 10 days, what you can do? सबसे पहले देखो चैप्टर्स कितने हैं. There are 11 chapters in SCMP. What you have to do? On day 1, I'll complete chapter number 1 and chapter number 2. On day 2, I'll complete chapter number 3 and chapter number 4. ऐसे आपको प्लानर सेट करना है कि 6 days में मेरे 11 चैप्टर्स हो गए. कौन से दिन कौन सा चैप्टर करूंगा? 7th और
7th डे को मैं मॉड्यूल 3 करूंगा जो केस स्टडी बुकलेट है, 8th एंड 9th डे को मैं केस स्टडी डाइजेस्ट करूंगा, एंड 10th डे को मैं आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर दिखूंगा, और 10th डे को मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दे दूंगा। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ डेली प्लानर। नाउ अगेन गो इनसाइड दैट डेली प्लानर। आपने लिखा है डे 1 में यू विल डू चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। नाउ मेंशन फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM to 2 PM आई विल डू चैप्टर 1, from afternoon 3 PM to night 10 PM or 11 PM I'll do chapter number 2। ऐसे आपको रोज प्लान करना है। While I was studying, I used to maintain a small diary with me, and every night I used to record that what I have studied today and what I'm going to study tomorrow। कल का पूरा प्लानर में वो डायरी में लिख देता था। नेक्स्ट डे रात को आई यूज्ड टू चेक कि भाई मेरा कितना हुआ है, आज जो मैंने प्लान किया था वो हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है तो फिर मैं जितना थोड़ा बाकी था वो नेक्स्ट डे पे लिख के ईच एंड एवरी डे आई यूज्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड कि कैसे पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो प्लानर है वो भी फॉलो होगा, एंड यू विल गेट मोटिवेशन कि नहीं ये मेरा डेली टारगेट है, ये खत्म हो, डेली टारगेट है खत्म हुआ। तो थर्ड थिंग क्या करनी है आपको, यू हैव टू एंश्योर यू आर मेकिंग अ डेली प्लानर। एंड फोर्थ थिंग, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। So many students fail because they use multiple resources। 5-10 फैकल्टी के बुक्स यूज कर रहे हो, आईसीए का बुक यूज कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने बोला ये अच्छा है वो अच्छा है, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं। ट्रस्ट द फैकल्टी फ्रॉम whom you have studied, उसके ही बुक्स आपको यूज करने हैं, और साथ में ICAI के जो मॉड्यूल है वो रखो। यू हैव टू यूज ओनली 2 रिसोर्सेज। एक, आप जो भी फैकल्टी से क्लासेस लिए या जिनके भी फैकल्टी आप यूज करो यूट्यूब से वगैरह कहां से भी, एक ही फैकल्टी की बुक्स रखो, उसमें से पढ़ाई करो, और साथ में ICAI का जो मॉड्यूल है ना वो मॉड्यूल रिफर करो कि मॉड्यूल में कुछ यहां से छूट नहीं जाता है ना, फैकल्टी से कुछ मिस नहीं हुआ है ना। आइडियली फैकल्टी से मिस नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ मिस हुआ है, सिलेक्टिव स्टडी हुई है, तो वो आप जब भी मॉड्यूल पैरेलली कंपेयर करते हो तो वो हो जाएगा। तो ये 2 ही रिसोर्स आपको रखने, एक फैकल्टी की बुक्स और दूसरा ICAI का मॉड्यूल। और अगर आप ICAI के बुक्स में से पढ़ रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, तो आपके पास एक ही बुक है। इसलिए इससे ज्यादा रिसोर्सेज मत रखना, क्योंकि अगर आप स्टडी लीव में 8-10 रिसोर्सेज में से पढ़ते हो तो 1.5 डेज में आप उतने से नहीं कर पाते हो। एंड यू हैव टू स्टडी टुडे बट प्लान फॉर 1.5 डेज टुडे। यू हैव टू स्टडी टुडे बट प्लान फॉर 1.5 डेज। आज आप जो पढ़ रहे हो ना वो क्या आप 1.5 डेज में पढ़ पाओगे? आज आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समराइज करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, उसको आपको समराइज करना है। जितना हो सके उतना समराइज करो, ताकि 1.5 डेज में आप हो सके ना उतने सारे कॉन्सेप्ट्स कर सको। आज अगर आपका दिन इन्वेस्ट हो रहा है कुछ चीजें समराइज करने में, छोटी करने में, हैंड रिटन नोट्स बनाने में, SFM की फॉर्मूला शीट बनाने में, तो ठीक है आज टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि आपका 1.5 डेज में टाइम बचे और 1.5 डेज में आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर जाओ। क्योंकि जो आप 1.5 डेज में देखोगे उतना ही आपको याद एग्जाम में आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज नहीं करना है, यूज लिमिटेड रिसोर्स, ट्राई टू समराइज दैट रिसोर्स, plan for 1.5 days today itself so that whatever you are studying today should get covered in 1.5 days। अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो then no one can stop you from clearing in this attempt। I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ये वीडियो को लाइक बटन हिट करना तो बनता है। आई एम टेलिंग जॉब के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कैसे कर रहे हैं, लेकिन यहां तक मैंने आपको बातें की है, आई होप ये यूजफुल है, तो लाइक बटन तो हिट करना बनता है। तो आई होप आप सबने ये वीडियो को लाइक कर दिया है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं नवंबर 23 में, उनके साथ ये प्लानर जरूर शेयर करना, सो दैट इवन दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इफ you have loved this video or you have liked this video and you are going to use this planner, then comment करके जाना that I am going to follow this planner and become a chartered accountant this attempt। आपके नाम के आगे CA लगा के कमेंट करके जाना, so that no one can stop you from clearing your exams। Now let's come back। If you are giving your exams with full-time job, अभी आप जॉब कर रहे हो, देयर कुड बी एनी सर्कमस्टेंसेस, आपको फाइनेंशियल नीड है इसलिए आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, अभी आप जॉब के साथ ही एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अभी अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट कि मैं जॉब कर रहा हूं और क्लियर नहीं हो रहा हूं, आपको जॉब के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड देन अदर पीपल बिकॉज यू आर डूइंग जॉब पैरेलली। सो फॉर योर टाइम इज द की, फॉर योर टाइम इज द कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, अननेसेसरी थिंग्स है, उन्हें आपको हटाना है। इंस्टाग्राम का स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यहां वहां घूमने जा रहे हो, ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि आप जॉब के साथ कर रहे हो। आपको ये टाइम इंश्योर करना है कि जॉब के साथ आप क्लियर एग्जाम कर जाओ। तो आपको टाइम इज द की, इसीलिए जितने भी अननेसेसरी चीजें ना उन्हें पहले हटा दो।
दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपके शायद 3-4 रीड्स ना हो, क्योंकि वीकडे में आपको हार्डली 3 to 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स मिलेंगे, लेकिन वीकेंड्स में यू हैव टू एंश्योर आप 10 से 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई निकाल रहे हो, एंड यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 रीड्स. Try to complete 1 full read and try to complete 1 revision. If you can manage at least 2 complete reads, और जो मैंने ऊपर मिस्टेक्स कहे वो आप अवॉइड करते हो, then there is a very bright chance that you will clear in November 23 attempt. थर्ड थिंग, 1 full syllabus टेस्ट सीरीज में पूरे वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज पे एम्फेसिस कर रहा हूं, इसीलिए आपको भी इसमें से एग्जामिशन नहीं है. इवन इफ यू आर गिविंग एग्जाम विद जॉब, आपने भले मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, आपने भले एग्जाम का एटमॉस्फेयर फील किया है, फिर भी टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट. यू हैव टू गिव 1 full syllabus टेस्ट सीरीज बिफोर appearing for your exams. And if possible, try to take at least 15 days leave if you have to give one group and 25 days leave if you have to give group 2. I know it is difficult to take leaves from your job, लेकिन अगर मिलता है तो 10, 15, 20 दिन का अगर आप लीव मैनेज कर सकते हो, then you will be able to prepare for that group in that study leave perfectly. तो एक और अच्छा रिविजन आपका ये लीव में हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर पाऊं. तो आई होप आपको ये जो टिप्स जो मैंने शेयर किए वो यूजफुल होंगे. नाउ यू माइट हैव डाउट कि सर क्या मुझे क्लासेस वापस लेने चाहिए, मैं इतनी बार से एग्जाम दे रहा हूं, या फिर मुझे दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए. ये जो बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे मैंने ये चैनल पे एक सीरीज बनाई थी, लेट्स बाउंस बैक सीरीज, जिसके 6 पार्ट्स है. उसके अंदर आई हैव आंसर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस. तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप जाकर वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो. ये वीडियो को वापस मैं कह रहा हूं, लाइक करना, कमेंट करके जाना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो आने वाले अटेम्प्ट में, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना. आई होप दैट आप सब ये स्टडी लीव में अच्छे से प्लान करके नवंबर 23 अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओ, और अपने आप को भी प्राउड फील करवाओ और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाओ. यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड. बाय बाय.